हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 7 अगस्त। इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। हवाई 7 अगस्त 1969। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। অনাদি করম ফলে অনাদি করম ফলে পরিভবার নবজলে তরিবারে না দেখি উপায়. This is a song sung by Bhaktivinoda Thakur depicting the picture of the conditioned soul. It is said here, Bhaktivinoda Thakur is speaking, taking himself as one of the ordinary human being, that due to my past fruitive activities, I have now fallen in this ocean of nescience, and I do not find any means of coming out of this great ocean. It is just like the ocean of poison. A bishaya hola hale, dibanishi hiya jale. As if anyone takes some pungent food, it burns the heart. Similarly, as we are trying to be happy by sense enjoyment, actually it is just becoming the opposite, a cause of burning our heart. A bishaya hala hale dibanishi hiya jale. That burning sensation is going on 24 hours, day and night. Mono kobhu sukha nahi paye. And on account of this, my mind is not at all in satisfaction. Asha paso sato sato klesho dayo birot. I'm always making plan, hundreds and thousands, how I shall become happy. But actually, all of them giving me trouble, pains, 24 hours. Prabitti urmiro tahe khela. It is exactly like the waves of the ocean, always dashing one another. That is my position. Kam krodho adi choy, batpare day bhoy. Besides that, there are so many thieves and rogues, especially they are 6 in number, namely lust, anger, envy, illusion, and so many ways. They are always present, and I am afraid of them. Abosano hoilo asibela. In this way, my life is becoming advanced, or I am coming to the point of end. Jnano karma thago dui more pratariyaloi. Although this is my position, still 2 kinds of activities, namely mental speculation and fruitive activities, they are cheating me. Jnano karma thago. Thago means cheater. There are Jnano karma thago dui more pratariyaloi. They are misleading me. And obsessive fele sindhuja. After misleading me, they bring me on the seashore and pushes me down within the sea. Ehano samaya bandhu tumi Krishna kripasam. Under this circumstance, my dear Krishna, you are the only friend. Tumi Krishna kripa sindhu. Kripa kori tolo more bole. Now I have no strength to get out of this ocean of nescience. So I request, I pray unto your lotus feet that by your strength you kindly pick me up. Patita kinkare dhari padapatma dhuli kari. After all, I am your eternal servant.
So somehow or other I am fallen in this ocean. You kindly pick me up and fix me as one of the dust of your lotus feet. Deho Bhakti Vinodaya Ashraya. Bhaktivinoda Thakur entreats that kindly give me shelter on your lotus feet. Ami tavo nitya das. Actually, I'm your eternal servant. Bhuliya Maya Pas. Somehow or other I forgot you and I am now fallen in the network of Maya. Baddhoye achi dayamaya. My dear Lord, I have been entangled in this way. Kindly save me. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो भगवान यहाँ स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं। पहले भगवान ने समता की बात की थी, यहाँ पे बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं। किसकी बुद्धि स्थिर है? जब तक हमारी इंद्रिय भोग में लगी रहेंगी तब तक अस्थिर रहने वाली है। देखिए, जिसके पास फैसिलिटी है भौतिक संसार में, धन है, बड़ा घर है, गाड़ी है, ऑफिस है, बहुत सारी भौतिक चीजें उसके पास है और उसका मन और इंद्रियां भी भौतिक चीजों में लगी है। आप देखेंगे कि स्थिरता नहीं आ पाती, मन हमेशा विचलित रहता है। किसी के पास फैसिलिटी कम हो लेकिन इच्छाएं बहुत है, तो इच्छा भी एक मन पे निर्भर करती है ना, मन को अस्थिर करती है। तो मन भी इंद्रियों का राजा भी है। तो अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो हमारी इच्छाओं को, जो है भौतिक इच्छाओं को, उनको रोकना पड़ेगा और आध्यात्मिक इच्छाओं के प्रति हमें कार्य करना पड़ेगा। बुद्धि जो स्थिर है वो कब पता पड़ेगा कैसे स्थिर है? अगर हमारी इंद्रियां वश में है तो। और इंद्रियों को वश में रखना कृष्ण भक्ति के बिना असंभव है। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं बड़े बड़े योगियों के। शौबरी मुनि पानी में रह के, पानी के अंदर नदी में, वृंदावन में यमुना के नीचे रह के योग कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, सालों साल पानी के अंदर। हम कुछ मिनट पानी के अंदर नहीं रह सकते, सांस लेना पड़ता है। वो आजकल जाते हैं जो डीप डाइविंग में तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। शौबरी मुनि बैठे हैं नदी में नीचे और कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने महान योगी, लेकिन पहले वो भक्त नहीं थे, बाद में भक्त बने। तो कैसे उनका मन जो है वो भटक गया। तो ऐसे ही हमने पहले भी देखा है और आज तो बात ही छोड़ दीजिए, आज तो योगी भी नहीं मिलते। तो अगर इंद्रियों को और मन को वश में करना है, स्थिर करना है बुद्धि को, तो क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति सबसे सरल उपाय है। और कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे की जाती है? प्रामाणिक गुरु के शरण में रह के उनके निर्देश अनुसार हम कृष्ण भक्ति करते हैं। और वही व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी होता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से उसकी जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो खत्म हो गई। तो फिर भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है भौतिक संसार से। ये तो हम आके इच्छा कर बैठे, इसलिए फंस गए। तो आपने देखा होगा अपने जीवन में भी,
कि जब हम इच्छाएं रखते हैं भौतिक, भले आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी हो या थोड़ी सी फैसिलिटी हो, लेकिन अगर इच्छाएं बहुत हैं तो मन जो है थोड़ा विचलित रहता है। जल्दी लोग आजकल देखते हैं ना, लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और एक बड़ा चीज जो आजकल भारत में भी बहुत चल रहा है, लॉयल्टी नहीं है रिलेशनशिप। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब भौतिक इच्छा है। हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जितने हैं उतने में जीवन चल सकता है, लेकिन इच्छाएं असंख्य है, अनंत है। तो इसीलिए मन को और इंद्रियों को हमको वश में करना पड़ेगा कृष्ण भक्ति करके। उससे बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपको शांति प्राप्त होगी और आप भक्ति के मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हुए आप अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।